was बीटा को हमने एग्जैक्टली हाफ कर दिया फ्रॉम 140 it came to 70 एंड उसके बाद में फिर से हमने आईबी कैलकुलेट किया फ्रॉम देयर वी कैलकुलेटेड आईसी एंड फ्रॉम देयर वी कैलकुलेटेड बीसीई ओके and the result interesting result was there was not much change in this IC there was not much change in this IC nothing but your collector current was not changing and your VCE was also not changing उसका मतलब क्या है उसका मतलब ये है कि what is this VCE and IC it is nothing but an operating point so operating point is almost stable. I can say almost stable. ये नहीं बोलूँगा completely stable because you see there's a slight difference 0.85 से लेके 0.83 there's a slight difference but I would say it is almost stable. When I say almost stable किससे comparison में definitely there has to be a comparison. अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि this biasing circuit is best तो किसके comparison में I need a comparison. So what was that comparison is जो पहले जो हमने दो biasing circuits discuss किए उनके comparison हम देखेंगे. Okay. So what is this biasing circuit? Is fixed biasing circuit, and fixed biasing circuit का beta was 50. Beta equal to 50 के लिए हमने सारी चीजें calculate कर रखी हैं. If you have your running notes, you can go through that, right? So beta के लिए हमने beta जो 50 था fixed bias circuit के लिए. So 47.08 microampere था. वहाँ से हमने IC calculate किया and from there we calculate VCE. Okay. So this is what we have already calculated for beta equal to 50. Beta equal to 100 we didn't calculate, but मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये calculate करें and just see. What is the result that you are getting actually? And I'm giving you the result directly over here. आप cross check कर सकते हैं. For beta is equal to 100, IB is equal to 47.08. 47. IB is not changing, right? But what is happening here is IC is changing, and IC is almost double. You can see over here from 2.35, it came to 4.7, 4.71. Nothing but beta is almost IC is nothing but almost double. And if we talk about VCE, VCE is also reducing. 6.8 से कहाँ पे आ गया? 1.64 पे आ गया. ठीक है. Nothing but there is a change बहुत ज़्यादा है इन दोनों में. If we talk in terms of percentage change बहुत ज़्यादा है VCE और IC. And similarly emitter bias की हम बात करते हैं 2.01 से 3.6 से यहाँ पे change है but in comparison to fixed bias यहाँ पे change जो है कम है. Right? Is that clear? In comparison to this VCE percentage change इसमें percentage change कम है. Okay, and सबसे least किसमें मिला आपको? सबसे least जो आपको result मिला that is in voltage divider biasing circuit. So इसलिए हम कहते हैं कि voltage divider biasing circuit is superior of these three biasing techniques that we are studying. Is there any confusion? I'm not going with this. इसको पहले हमने क्या discuss किया था numerical and now आप please आप देख सकते हैं. And that numerical is from the textbook that you already have, that is Boylston. Boylston से ये मैंने data लिया. It is not that मैंने कहीं और से लिया. So if you want to refer, you can go to your Boylston soft copy that you already have. ठीक है. आपके Google Classroom में available है Boylston की soft copy. तो वहाँ आप इसको देख सकते हैं. सारे data मैंने वहीं से ले रखा है. And the numericals that we are discussing is from there only. Okay. So let me start a numerical. एक numerical बताता हूँ मैं. Voltage divider के लिए हमने देख लिया था. I'll be giving you a circuit and I want you to solve this circuit. इस circuit को आप solve करें नाम से बताएं. अगर आपने ये question solve कर लिया तो biasing circuit में आप सारे questions almost solve कर सकते हैं without any friction or any problem. ठीक है? So I hope everyone remembers the circuit configuration of voltage divider biasing circuit. What is that we'll be having is we'll be having RC and this is nothing but my R. Okay. And यहाँ पे होगा R1 which is 8.2 okay, let me do that. Let me remove this RC. So it is 2.7 K and this is 1.8 K. आपका जो R2 जो है that is 2.2 K. Okay, and this is nothing but my VCC which is equivalent to plus 20 volts. Okay, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे? Is there any problem with this circuit? Hello? Hello? No, sir. I hope you आप सब लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, right? You know everyone कि आपको पहले क्या करना होगा, इस वोल्टेज सोर्स को इस साइड लेकर आएंगे, राइट? सेपरेट करके लिखेंगे इनपुट एंड आउटपुट को इन टर्म्स ऑफ VCC. उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे? VTH will calculate and will calculate my RTH. एक इक्विवेलेंट सर्किट आएगा and from there you will calculate the IB.
IC आ जाएगा, बीटा दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज बीटा इज इक्वल टू 120. दिस इज व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, तो if beta is given, IC you can calculate. IC आ गया, you can apply the KVL on the output side, you can calculate BC. IC आ जाएगा, BC आ जाएगा, you are done with your problem. ठीक है, so इस kind of problems में दिक्कत नहीं होती, right? अगर इसमें थोड़ा सा एडिशन में यहाँ पे करूँ, initially what is that we used to do was this was actually grounded, right? इसको हम क्या करते थे, ground करते थे. Okay, so instead of grounding this, what is that I'm connecting over here is I'm connecting minus 20 volts instead of grounding. This is what I am connecting over here. Okay, तो इस VEE को भी ध्यान में रख के आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, right? So many students don't understand how to handle this minus 20 volts, right? Nothing but कुछ नहीं है, जो हमारा V actually grounded था वहाँ पे it was 0 volts, right? When it was grounded, जब ये ground होता था तो उस केस में यहाँ पे जो वोल्टेज होता था that was 0 volts. And now instead of 0 volts, what is that I'll be taking is I'll be taking a voltage source whose value is minus 20 volts. Okay, so that is the only thing that I need to take care of. यहाँ पे सिर्फ एक voltage source add होगा, and उस voltage source को ध्यान में रखते हुए मुझे यहाँ पे KVL में थोड़े से changes आएंगे, and VTH में थोड़े से changes आएंगे, and what is that we will see now. क्या solve कर सकते हैं आप, इसको बताइए एक बार. प्लीज अगर बता दीजिए कि आप solve कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. So I'll give you a hint how to solve it, and after that I would like you people to solve this question. So this is nothing but 2.7K, and this is nothing but 1.8. क्या यहाँ पे मैं plus 20 volts लिख सकता हूँ? Yes, I can write it as plus 20. Okay. And what is the change? Here is. Please इस स्टेप को ध्यान से देखिए. After this step, क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं बचा है. क्वेश्चन में कुछ नहीं है. उसके बाद सिंपली आपको ID कैलकुलेट करना है, VTH, RTH, everything is. Everything will fall in place if you are okay with this step. Okay. So this is nothing but 8.2. पहले यहाँ पे +20 था, इसको मैं सेपरेट कर दिया. एक इसको मैंने +20 से सेपरेटली कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने +20 से सेपरेटली कनेक्ट कर दिया इनपुट साइड. ओके, एंड उसके बाद मेरे पास क्या है यहाँ पे, उसके बाद मेरे पास होगा यहाँ पे 2.2K, एंड दिस इज कनेक्टेड टू बेस. ये बेस से कनेक्टेड है, एंड जब भी हम किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, नथिंग दैट इज ऑलवेज रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अभी मुझे बताओ इसमें और क्या चेंजेस करने होंगे सर्किट में. यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो 2.2K है, नथिंग बट आपका जो R2 है वो किससे कनेक्टेड है? That is connected to -20. Yes, hello. ये जो आपका R2 जो है, this is nothing but my R2 resistance, and R2 is connected to what? R2 is connected to -20 volts. Yes, and आपका जो RE जो है, this is also connected to -20 volts. जैसे हमने इसको सेपरेट किया था, जैसे हमने इसको सेपरेट करके लिखा था, +20 को हमने सेपरेट किया था 8.2K यहाँ पे इस तरीके से, and 2.7K पे जैसे हमने सेपरेट किया था उस तरीके से हम इसको सेपरेट करके यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, so if I draw it that way, so what is that I'll get is, देखो यहाँ पे जो polarity आप यूज करोगे that is very important. The polarity that you'll be using is very important. So this is -20 volts, and this is also -20 volts. क्या आप लोगों को समझ में आया? बताइए एक बार इसमें क्या कोई कंफ्यूजन है? सही, इस सर्किट को मैंने किस तरीके से ड्रॉ किया, इस सर्किट को मैंने इस तरीके से सिंपलीफाई करके ड्रॉ कर दिया, सो दैट इट विल बी इजी टू एनालाइज. यहाँ पे आपके VTH और RTH आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. क्या कोई कंफ्यूजन है? बताइए इसमें एक बार. हेलो, प्लीज डू लेट मी नो इफ देयर इज कंफ्यूजन. नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं. यहाँ पे जो आपको चीज ध्यान देना है, इस चीज पे आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा. ये जो है पोलैरिटी आप देखिए, ये प्लस है एंड ये माइनस है, एंड दिस इज -20 वोल्ट्स. इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इट इज -20 वोल्ट्स. अगेन दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, एंड अगेन दिस इज -20 वोल्ट्स. इज दैट क्लियर? तो इसको और तरीके से क्या लिख सकते हैं? देखो, अगर मेरे पास एक ऐसा सोर्स है, दिस इज
प्लस माइनस माइनस 20 वोल्ट इसका मैग्नीट्यूड है। क्या इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ बाय चेंजिंग द पोलैरिटी? क्या मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ? बताइए एक बार। एक वोल्टेज सोर्स था, पोलैरिटी ऐसी थी प्लस माइनस एंड हुज मैग्नीट्यूड वाज -20। एंड अभी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पोलैरिटी रिवर्स कर दिया एंड मैग्नीट्यूड को मैंने 20 रख दिया, सो दैट इट विल बी क्लियर फ्रॉम माय साइड कि -20 वोल्ट्स यूजुअली हम देखते नहीं है। तो यूजुअली इफ यू हैव 20 वोल्ट्स विद दिस पोलैरिटी यू कैन इजीली हैंडल इट। मैं और थोड़ा सा सिंपलीफाई करके बताऊं, नो डाउट अगर आप इसको -20 रख के भी आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट द सेम आंसर। इट इज नॉट दैट यू आर गोइंग टू गेट समथिंग डिफरेंट, यू विल गेट द सेम आंसर देयर आल्सो। बट मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके से इसको आप ड्रॉ कर लें। क्या समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। प्लस माइनस 20 है तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इट इज माइनस प्लस एंड दिस इज 20। तो इसलिए मैं उसको कैसे ड्रॉ करूंगा, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी ड्रॉ करेंगे। So what is that I'm doing here is this is what I'm doing। and अभी इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा डायरेक्टली 20 वोल्ट्स। यहाँ पे मैं इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखूंगा, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, दिस इज ग्राउंडेड एंड दिस इज अगेन 20 वोल्ट्स। दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, प्लस माइनस। I hope there is no confusion। कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो टेल मी व्हाट इज टू डन नेक्स्ट। क्लियर? हेलो, अभी क्या करना है बताइए। अभी आप इसके बाद व्हाट इज दैट वी डूइंग वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट। क्या चाहिए मुझे? वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट में हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? VTH RT। यस, अक्रॉस दिस line I want my VTH and RTH। आप इस ये जो आपका BJT है इसको कंप्लीटली ओपन कर दीजिए। इस BJT को ओपन करके क्या कैलकुलेट करना है आपको? VTH एंड RTH कैलकुलेट करना है। अगर VTH RTH आ जाएगा वहां से मेरे पास IB आ जाएगा। ठीक है, तो अभी बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VTH एनीवन? VTH वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ VTH? सॉरी, 8.46 volt। 8.46 volts is VTH। हेलो, Yes। VTH वैल्यू बता रहे हैं। ओके फाइन। सो आपने बताया 8.46। ओके, लेट्स क्रॉस चेक ये 8.46 वोल्ट्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, so VTH is about 8.46 आएगा या नहीं आता है, चेक करते। सो लेट मी डू वन थिंग, लेट्स टेक द नेक्स्ट स्लाइड एंड वहां पे ये जो है इसी सर्किट को ड्रॉ करूंगा बिकॉज़ मुझे यही सर्किट चाहिए एंड इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस मुझे चाहिए VTH। ओके, सो लेट मी ड्रॉ दैट इन द न्यू स्लाइड। So this is 8.2, this is 20, this is where do I want my VTH? I want my VTH across these 2 points। इन दोनों पॉइंट्स across मुझे चाहिए VTH and RTH। Okay, so ये जो दोनों वोल्टेज हैं, this is 20 volts and this is also 20 volts। So let me give you the polarity। polarity को यहाँ पे लिख देता हूँ। So definitely यहाँ पे current flow करेगा, whatever the current direction, so this would be the current direction, plus minus, and when current is flowing in this direction, plus minus and this is minus and this is plus। क्या यहाँ पे KVL अप्लाई कर सकते हैं? Can I apply KVL here? हेलो, क्या KVL अप्लाई करके यहाँ से करंट निकाल सकते हैं? यस। सो इफ आई वांट द करंट, अगर मुझे यहाँ से करंट चाहिए होगा, सो I इज इक्वल टू V बाय R। ठीक है, ये 20 एंड 20 बोथ आर इन सीरीज 18 होंगे, वो एक दूसरे को 8 कर दें। सो डायरेक्टली वोल्टेज जो होगा इस पूरे लूप में दैट विल बी 40, दैट इज 20 प्लस 20 दैट इज 40। एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस? 8.2 प्लस 2.2 कितना हो जाएगा? 10.4, 10.4 के, फिर 10.4 के। सी इस k को आपको ध्यान रखना, व्हाट इज k इज नथिंग बट किलो 10 टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, सो इफ आई कैलकुलेट I ओवर हियर, सो व्हाट इज दैट आई विल गेट हियर इज 83.85 milliamperes। आई एम गिविंग यू द आंसर डायरेक्टली बट आई वांट यू टू calculate करें मेरे साथ। ठीक है,
So what is the value of I that we have here? The value of I is 3.85. अब मुझे बताइए इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? What about the value of VTH? What about the value of VTH now, anyone? ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इस चीज को आप ध्यान दीजिए, दिस इज पॉजिटिव साइन है, दिस इज नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है, नथिंग बट सीरीज अपोजिंग नोड है। तो मैं इसको पॉजिटिव मान के चलता हूँ, या तो फिर इसको जैसा आप करना चाहो, जैसे यू आर द वे यू आर कंफर्टेबल विद, ठीक है, जिस तरीके से आप करना चाहते हैं। फर्स्ट क्या है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, व्हाट इज VTH? इसको ध्यान से देखिए। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2.2 के minus is connected to minus, so I will be using a minus sign over here, and it is 20 volts. क्या इसमें कोई दिक्कत आ रही है? बताइए मुझे एक बार। VTH is equivalent to, because I want VTH across these two points, right? So voltage drop across 2.2 k minus 20 volts. क्या लिख सकता हूँ ऐसे? हेलो, is there any confusion? बताइए प्लीज एक बार। नो सर। क्लियर, राइट? बस VTH क्या है, इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना है, इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना है, बस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो VTH होगा आपका यहाँ पे। एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2.2? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2.2 कितना होगा बताइए। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2.2 के वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? I into R, I into R, and what is R? R is nothing but 2.2 k। I कितना है यहाँ पे? 3.85। इसके थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है? 3.85 milli amperes. So milli and this k will get cancelled. So if I solve this, 3.85 into 2.2 कितना आ रहा है? It is 8.47. 8.47 volts. Okay, fine. So this is 8.47, and resultant क्या मुझे चाहिए VTH. So what about the value of VTH finally? VTH will be equal to 8.47 minus 20. कितना आ जाएगा ये? 11.5, roughly around 11.5 volts. Is this clear? And minus 11.5 volts. क्या ये समझ में आया आप लोग? एंड अभी जो आपने आंसर दिया था 8.4, किसने आंसर दिया था 8.46, राइट? आप यहाँ तक एकदम सही किया, राइट? द ओनली थिंग दैट आप छोटा सा स्किप कर गया, नथिंग बट इसको आप भूल गए कि आप इसको ऐड करना था, इसको सबट्रैक्ट करना था। अगर इसको ध्यान रखते तो यू वुड हैव गिवन द राइट आंसर। यू आर ऑलमोस्ट देयर। सो दिस इज नॉट एक्चुअली द VTH, ये एक्चुअली VTH नहीं है। ये जो आपने आंसर दिया था ये VTH नहीं है। यू जस्ट फॉरगॉट टू ऐड दिस -20। अगर -20 आप ऐड कर देते तो आपका सही आंसर आ जाएगा, राइट? सो दिस इज द राइट आंसर दैट वी हैव ओवर हियर। सो दिस इज नथिंग बट माय VTH। एंड व्हाट अबाउट RTH? RTH कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए? RTH तो सब लोग कर लेंगे वैसे। RTH इज इक्वल टू शॉर्ट सर्किट दिस 20 वोल्ट्स एंड शॉर्ट सर्किट दिस 20। शॉर्ट सर्किट क्यों करते हैं हम वोल्टेज सोर्स को? व्हाई डू वी शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स व्हाइल कैलकुलेटिंग RTH? उसका R इम्पीडेंस इक्विवेलेंट निकालने के लिए। Yes, impedance offered by this voltage source is 0. Voltage source का resistance 0 है। 0 का मतलब short circuit. And impedance offered by the current source is infinite. इसमें हम current source को क्या करते हैं? Open करते हैं, right? So these are the few छोटे-छोटे points आपको बार-बार revise करते रहना चाहिए कि so that you don't lose the grip over that basic circuit analysis. Okay? So RTH जो हम calculate करेंगे 2.2 in parallel with 2.2 k in parallel with 8.2 k. So I'm giving you the answer directly. So the answer that I have here is 1.73 kilo. बस ये दोनों हो गए, मतलब you are done with the question में हो गया आप लोग। अब इसके बाद कुछ भी नहीं, right? So I will give you the next equivalent model, and उसके बाद आप ID calculate कर लीजिए वहाँ से। So what is the model that we have over here is, so अभी मैं इक्विवेलेंट मॉडल VTH और RTH को यूज करके ड्रॉ कर रहा हूँ। सो -11.5.
This is VTH, right? ये VTH है, this is the polarity plus minus, and this is nothing but your RTH. यहाँ पे जो polarity है, this is plus minus, and this is यहाँ पे जो current flow करेगा, that is IP. यहाँ पे जो आपको current flow करेगा, that is IP over here. यहाँ पे जो current flow करेगा, that is IE, and हमको पता IE is equal to 1 plus beta times IP. So everyone knows this. I is equal to 1 plus beta times IP. What is this? This is nothing but RE. This value है 1.8K, and this is nothing but 20 volts minus plus. क्या यहाँ पे KVL अप्लाई कर सकते हैं? Can I apply KVL over here? RTH की वैल्यू कितनी है? RTH is 1 point. कितना था RTH? 1.73. This is VTH. ये आपका VTH है. ये आपका RTH है. Everything you have. क्या यहाँ पे हम KVL अप्लाई कर सकते हैं? Can I apply KVL over here? Yes. Hello. Yes, sir. Yes, sir. This is minus 11.5 minus IB into RTH minus IB into RTH is 1.73. Okay. And next is VB होगा, that is 0.7. Next minus IE. IE को हम कैसे लिख सकते हैं? IB into 1 plus beta into RE, that is 1.8K. Okay. And next is plus 20 is equal to 0. I hope सब लोग ये वाला equation तो लिख ही लेंगे, and if you solve this IB, so I don't want to waste time here, so I'm directly giving you the answer. 30.53 microampere. So what is the value of IB you are getting? The value of IB that you will get here is IB is equal to here after IB का value. So if you have IB, what is that you can calculate? If you have the value of IB, what is that you can calculate? IC. Yes, IC यहाँ से आप calculate कर सकते हैं. IC आप calculate कर सकते हैं, which is beta times IB, and once you have IC, what is that you can calculate is VCE. That's it. Okay. So what is the final thing that you need to calculate is IC and VC आप calculate करना है. आप यहाँ से आप calculate. अगर एक बार आपके पास IB आ गया तो उसके पास कुछ भी नहीं है क्वेश्चन. They simply are those two equations देखते हैं, from those two equations you get the answer. Okay. So the point that I wanted you to understand here was कि यहाँ पे अगर आपके पास कोई voltage source दिया जाता है, instead of ground, if they are connecting any voltage source, so how to handle that kind of voltage source? Is that clear? Not only in this circuit, if you get this in voltage divider circuit, sorry, if you get this in fixed biasing circuit में कुछ अच्छे से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है, या तो फिर एमीटर बायस में अच्छे से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है, जहाँ पे आपको ये VEE is given, that is कोई नेगेटिव वोल्टेज दिया जाता है, तो उस केस में आप किस तरीके से आप इसको ड्रॉ करके हैंडल करेंगे. एंड इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो बाकी तो बायसिंग सर्किट सब आराम से कर लो, बिकॉज इसमें थोड़ा सा एनालिसिस ज्यादा होता है जस्ट टू कैलकुलेट दिस VTH and RTH. And if you have this result, you will have IB, and once you have IB, IC and VC can be calculated. Clear? I hope there is no confusion. कोई confusion नहीं है, right? Hello? No, sir. Please go to Badish. Okay, fine. So next important, I guess, diode के नाम ने equivalent circuit discuss किया था, equivalent model, right? So whenever we are discussing about a diode, we had a equivalent model. आया नहीं? Yes, याद है आप लोगों को? डायोड का equivalent model. कितने मॉडल्स होते हैं डायोड के? How many equivalent models we have for a diode? 4. Okay, fine. 4 बता दीजिए कौन से? As far as I remember, we have discussed 3. So one is the fixed voltage, right? And next one is piecewise linear model discuss किया था. एक जो था that was an ideal diode. Ideal diode में क्या करते हैं? Short circuit या तो open circuit. Constant voltage source में you replace the diode with a constant voltage source whose voltage is 0.7. And piecewise linear model में apart from voltage source will be having a resistance in series. Yes? याद नहीं है तो प्लीज एक बार देख लीजिए जाकर. उसी तरीके से जैसे हमने डायोड के लिए इक्विवेलेंट मॉडल डिस्कस किया था, उसी तरीके से अभी जब हमारा बीजेटी होता है, बीजेटी के लिए भी हमें एक इक्विवेलेंट मॉडल को डेवलप करने की जरूरत है, राइट? एंड दिस इज द फाइनल टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक रहेगा.
as far as this BJT is concerned to develop this equivalent model. एंड थोड़ा सा इस चीज से फोकस करना बिकॉज विल बी डिस्कसिंग फ्यू न्यू टॉपिक्स जो आप लोगों को सर्किट में पढ़ना चाहिए लेकिन अभी तक आपके कोर्स में कवर नहीं हुआ होगा. दैट इज टू पोर्ट एनालिसिस. टू पोर्ट नेटवर्क जो होता है आप लोगों ने डिस्कस नहीं किया होगा. सो आई विल बी डिस्कसिंग फ्यू बेसिक्स अबाउट द टू पोर्ट नेटवर्क आल्सो क्योंकि यहाँ पे मुझे हाइब्रिड मॉडल की जरूरत होगी. सो एक काम करता हूँ. लेट मी राइट स्टेप बाय स्टेप ओवर हियर. सो स्मॉल analysis of BJT. So what do you understand by this line, small signal analysis of BJT? And there is something also called as small signal है तो large signal भी होगा. Large signal analysis. So what do you understand by this small signal analysis and large signal analysis? क्या समझ में आता है आपको? स्मॉल सिग्नल, स्मॉल मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें? स्मॉल सिग्नल, सिग्नल छोटा है मतलब क्या छोटा है इसे? इज इट द फ्रीक्वेंसी, इज इट द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? आउटपुट वेवफॉर्म. आउटपुट वेवफॉर्म देखो जैसे अभी हमारे पास एसी एक साइनसॉइडल सिग्नल होता है और सपोज इफ यू हैव अ साइनसॉइडल सिग्नल हियर, राइट? व्हेन आई से स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, in what context I'm talking here? Is it in terms of frequency? Is it in terms of magnitude? Nothing but peak voltage या RMS value की बात है. किस context में बात कर रहे हैं आप? When it's a small signal and large signal. So what is that we are talking here is it is in terms of magnitude, right? So whenever I say a small signal or a large signal, what do I mean by that is I mean by magnitude. Magnitude आप कुछ भी reference रख लीजिए. या तो आप RMS value को reference रख लीजिए या तो फिर आप peak value को reference रख लीजिए, right? Either you can take RMS as a reference or a peak as a reference. Nothing but this is a peak over here. This is a peak over here. अगर मैं इसको बोलूँ small signal, when it's a large signal, the peak of the signal will be very large. Is that clear? Similarly, if you talk about your RMS values also, your peak value change होगा तो obvious बात है आपका RMS value change होगा. So whenever I say a small signal or large signal, so what do I refer there as? I refer magnitude over there. Magnitude के respect में हम बात करते हैं. Okay. So what is the strength of signal here? Is strength of the signal will be very small. Strength of the signal will be very small here. In terms of millivolts, या उससे भी कम मान, ठीक है? And ये जो large signal analysis होता है, ये हम नए topic में discuss करेंगे. That will come later in your course, and that is nothing but your power amplifiers. अभी large signal analysis के बारे में discuss नहीं करेंगे. अभी इस chapter में हम focus करेंगे small signal analysis of BJT, where the strength of the signal is very small. And as far as this large signal analysis is concerned, we'll be talking about this in power amplifiers. Power amplifier. Okay? Fine. चलो आपको एक सिंपल सा in terms of डायोड में बात करते हैं. डायोड के बारे में बात करते हैं, फिर हम BJT को उसको लिंक करेंगे. अब मुझे वेवफॉर्म का शेप बताना कि वेवफॉर्म का शेप कैसा आएगा. I want you to give me the shape of the waveform over here. This is some 25 millivolts peak value मान लीजिए. यहाँ पे डायोड है आपके पास, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है. So साइनसॉइडल है, तो इस तरीके से आपका so वेवफॉर्म कैसा आएगा बताइए एक बार. What about the waveform over here? Yes, anyone? सिंपल सा सर्किट है, क्या इतना सोच रहे हो आप लोग? एसी सोर्स है, डायोड है, सीरीज में लोड रेजिस्टेंस है. माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेवफॉर्म दैट यू विल गेट हियर, एंड इसके बाद हम बीजेटी से लिंक करेंगे इसको. हेलो, सिर्फ पॉजिटिव हाफ आएगा. सिर्फ पॉजिटिव हाफ आएगा. ओके फाइन. बाकी लोगों को क्या हो गया, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो? I didn't ask you something which is very complex, right? So negative half क्यों नहीं आएगा बताइए एक बार. ये जिसने भी आंसर किया होगा नेगेटिव हाफ क्यों नहीं आया? राजू, रजनीश, वैभव, बताइए आप लोग कोई. सर नेगेटिव हाफ में डायोड रिवर्स हो जाएगा. नेगेटिव हाफ में डायोड जो रिवर्स हो जाएगा. Is everyone okay with this answer?
हेलो, प्लीज यस और नो बोल दीजिए। रिवर्स बायस में आपका जो डायोड जो होगा दैट विल बी रिवर्स बायस। डायोड जो होगा वो रिवर्स बायस होगा नेगेटिव हाफ में। इज एवरीवन ओके विद दिस आंसर? Yes, sir. सो मेरे हिसाब से जो इसका वेवफॉर्म शेप आना चाहिए दैट इज, मैं अपने हिसाब से ड्रॉ करता हूँ, बताना कि क्यों मैंने ऐसे ड्रॉ किया, द रीजन व्हाई आई हैव ड्रॉन दिस वे। मेरे हिसाब से जो रेड कलर का जो आउटपुट है दिस इज एक्चुअल आउटपुट एज फार एज आई थिंक। ये मुझे लगता है कि ये जो रेड कलर का जो वेवफॉर्म है इस तरीके से आउटपुट आना चाहिए। अभी आप बताइए कि रेड कलर का जो वेवफॉर्म है क्यों आएगा, ये जो ब्लू कलर का वेवफॉर्म है क्यों नहीं आएगा, आउटपुट जीरो क्यों आएगा यहाँ पे? रेड कलर का वेवफॉर्म इन द सेंस इट इज ओवरलैपिंग विद योर एक्स एक्सिस, मैग्नीट्यूड इज जीरो ऑन एक्स एक्सिस देयर, so why it is overlapping with my x axis? Yes, give me the answer anyone. Anyone किसी के पास आंसर है तो बता दीजिए। चलो जो इनपुट Yes, इसको बोर्ड को प्रैक्टिकल डायोड यूज कर रहा है इसलिए आंसर इज ओवर हियर। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा होता, दिस इज द आंसर। अभी आपको आंसर पता चल गया होगा, अभी सबको आंसर समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ओवर हियर। इट कैन बी अ पीक और आरएमएस, इट इज 25 मिलीवोल्ट्स, इट इज 25 मिलीवोल्ट। एंड यू बेसिकली नो, हमको ये इतना बेसिक आइडिया है कि अगर मुझे डायोड को कंडक्ट करवाना होगा तो मिनिमम वोल्टेज दैट आई नीड टू अप्लाई हियर इज 0.7 वोल्ट्स, 0.7 वोल्ट्स। अगर मिनिमम वोल्टेज जो मुझे अप्लाई करना होगा दैट इज 0.7 वोल्ट। अगर 0.7 वोल्ट्स नहीं होगा तो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज व्हाट आई मीन। तो उसी तरीके से इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे बीजेटी के टर्म्स में। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं क्या करता, यहाँ पे अगर मैं एक वोल्टेज सोर्स लगा देता हूँ, अगर यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा देता है इसके सीरीज में अगर मैं वोल्टेज सोर्स लगा देता हूँ, राइट, नथिंग बट क्या होता है मेरे पास एक एसी सोर्स है, उसके साथ एक सीरीज में डीसी सोर्स, एंड डीसी सोर्स इज रफली अराउंड सम 2 वोल्ट्स, ऑनली 2 वोल्ट्स है। क्या उस केस में डायोड कंडक्ट करेगा? यस, डायोड कंडक्ट करता है, डायोड कंडक्ट करता। एंड उस केस में आपके पास ये वाला वेवफॉर्म नहीं आता, उस केस में आपके पास ये वाला वेवफॉर्म नहीं आता। डेफिनेटली अगर आपको देखिए यहाँ पे 2 वोल्ट्स है एंड आपके पास एक, देखिए सॉरी, सुपरपोजिशन तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, तो माइट हैव स्टडीड सुपरपोजिशन थ्योरम, राइट। तो मेरे पास दो सिग्नल्स हैं, मेरे पास अभी दो सिग्नल्स हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट सिग्नल? फर्स्ट सिग्नल इज हैविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वोल्ट्स, इट इज प्लस 2 वोल्ट्स। एंड एक जो है इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है एंड इज एसी सिग्नल। अगर हम इन दोनों को ओवरलैप करेंगे, व्हाट इज दैट आई विल गेट? व्हाट इज दैट आई विल गेट ओवर हियर? अगर हम इन दोनों को ओवरलैप करेंगे तो व्हाट इज दैट आई विल गेट? बताइए एक बार। अगर हम दोनों को ओवरलैप करेंगे व्हाट इज दैट आई विल गेट? आपका जो डीसी लेवल होगा इस साइनसॉइडल का, इट विल शिफ्ट टू दिस 2 वोल्ट। So this is what we are discussing, ठीक है? So the point here is, यहाँ पे आप देखिए 25 मिलीवोल्ट्स के लिए ये कंडक्ट नहीं करेगा डायोड। अगर डायोड को मुझे कंडक्ट करवाना होगा तो क्या होगा, पहले मुझे डीसी सोर्स कनेक्ट करना पड़ेगा जिसकी वजह से डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, एंड उसके बाद में सिग्नल जब इसको ओवरलैप करूंगा तब जाके मेरा डायोड ये कंडक्ट करेगा एंड इट विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू माय इनपुट। जैसे इनपुट में अगर चेंजेस आएंगे तो ऑब्वियस बात है आउटपुट में मेरे पास चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ रही है? ये जो पॉइंट है, हेलो हेलो,
Yes, sir. ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। व्हाट इज द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आपके पास एक एसी सिग्नल है, ठीक है, एंड उसका सिग्नल जो है बहुत कम है, दैट इज 25 मिली वोल्ट्स, एंड जिसकी वजह से कंडक्ट नहीं करेगा डायोड। तो अभी मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, एक डीसी सोर्स कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी मैंने क्या कर दिया, एक डीसी सोर्स मैंने कनेक्ट कर दिया जिसकी वैल्यू मान लो कि 2 वोल्ट्स। सो बिकॉज ऑफ दिस 2 वोल्ट्स पहले क्या होगा, आपका जो डायोड जो होगा दैट विल बी फॉरवर्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायस हो गया, एंड विद द fluctuations, with the change in this input, my output will also change. With the change in output, with the change in input, nothing but this is my input, with the change in 25 millivolts, my output will also change. इसके हिसाब से मेरा आउटपुट भी चेंज हो रहा होगा। Is that clear? तो यही चीज अभी तक हमने बीजेटी में भी किया है, यही चीज अभी तक हमने बीजेटी में किया है। ओके, सो व्हाट इज द बायसिंग सर्किट दैट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ? अभी तक जो भी हमने बायसिंग सर्किट डिस्कस किया था उसका रोल क्या था, यहाँ पे बताइए एक बार। What was the role of the biasing circuit till now? जो भी हमने डिस्कस किया। What is the role of the biasing circuit? हेलो, इस सर्किट के कॉन्टेक्स्ट में बता दीजिए कि जो बायसिंग सर्किट था वो क्या काम करता है हमारा, क्योंकि वहां पर भी हम बीजेटी में क्या होता है, हमारा जो वॉइस सिग्नल होता है उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा नहीं होता है। जैसे अगर स्टैंडर्ड एग्जांपल फॉर एम्पलीफायर इज, हम क्या कहते हैं कि योर वॉइस सिग्नल एंड आउटपुट दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम अ लाउड स्पीकर, ठीक है। इनपुट हमारा जो वॉइस सिग्नल होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इन द रेंज ऑफ मिली वोल्ट, उससे भी कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। एंड हमारे पास जो लाउड स्पीकर होता है इट इज बीन एम्पलीफाइड, सो दैट इज अ स्टैंडर्ड एग्जांपल दैट वी हैव फॉर एन एम्पलीफायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सिग्नल जो होता है उसका स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल इज वेरी स्मॉल। सो हमारा जो बायसिंग सर्किट क्या काम कर रहा है, हमारा जो बायसिंग सर्किट है ये काम कर रहा है हमारा बायसिंग सर्किट। This is what we are trying to do with the biasing circuit. Nothing but we are trying to make our BJT conduct. We are trying to make our BJT conduct. No doubt आपका जो output होगा that will change according to my input also. That will change according to my input also. समझ में आ रहा है? एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। Because this is a base. अगर आपको ये base समझ में आ गया तो उसके बाद BJT में you'll understand things very easily. This is the basic that you need to understand. What is that we are doing? कि हम कर क्या रहे हैं आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। मान लो ये मेरा दिस इज 2 वोल्ट्स। प्लीज बताइए अगर आपको समझ में नहीं आया तो। दिस इज 2 वोल्ट्स, एक वोल्टेज सोर्स है। यहाँ पे दो एक तरीके से देखा जाए दोनों ऐड ही हो रहे हैं। दिस इज प्लस माइनस एंड दिस इज माइनस एंड प्लस। क्या दोनों ऐड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, बताइए एक बार। AC प्लस DC, AC प्लस DC, क्या दोनों ऐड हो रहे हैं या नहीं? AC प्लस DC मिलके यहाँ पे मिलेगा आपको वोल्टेज जो भी होगा। या आपने DC यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। AC जो है इसका स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल इज वेरी स्मॉल, स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल इज वेरी स्मॉल। तो उसको मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है मेरे पास AC, इसका स्ट्रेंथ जो है बहुत कम है। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल इज नथिंग बट दिस इज AC एंड दिस इज नथिंग बट माय DC, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बताइए। इफ आई ऐड दीस टू व्हाट इज द आउटपुट दैट आई विल गेट? If I add these two, what is the output that I will get? Anyone? If I add these two, what is the output that I will get? So this is 2 volts. ये 2 volts होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे वोल्टेज कितना है? 2 volts। और यहाँ पे कितना है? It is 0. 2 plus 0 कितना हो जाएगा? 2. Yes? यहाँ पे मान लीजिए हम 25 मिली वोल्ट है। यहाँ पे it is 2 volts। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करता हूँ। 2 plus 25 मिली वोल्ट कितना हो जाएगा? दोनों का एडिशन होगा। सो व्हाट इज द आउटपुट दैट आई विल गेट इज, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो इस तरीके से मुझे वेवफॉर्म मिलेगा। हाँ या ना बताइए एक बार। एक डीसी था, एसी था, इन दोनों को मैंने ऐड किया, इस तरीके से मुझे वेवफॉर्म मिल रहा है। एंड दिस इज द इनपुट दैट इज बीन गिवन टू माय, दिस इज द इनपुट दैट इज बीन गिवन टू माय डायोड ओवर हियर। ये इनपुट मैं कहां पे दे रहा हूं? डायोड के पी साइड दे रहा हूं यहां। इज दैट क्लियर? कहां पर दे रहा हूं मैं? पी साइड दे रहा हूं यहां पे। तो ऑब्वियस बात है ये जो वेवफॉर्म होगा इसमें जो भी चेंजेस आएंगे, नथिंग बट चेंजेस किसकी वजह से आ रहे हैं? अगर मेरे पास ये एसी सप्लाई नहीं होता तो आउटपुट हमेशा क्या होता मेरे पास? आउटपुट हमेशा क्या होता? आउटपुट हमेशा मेरे पास 2 वोल्ट से मिलता है, नहीं मिलता? बताइए एक बार। हेलो, अगर मेरे पास ये एसी सप्लाई नहीं होता, ये एसी सप्लाई नहीं होता, अगर इफ आई वुड हैव गिवन 2 वोल्ट्स, सो व्हाट इज द आउटपुट दैट आई विल बी गेटिंग? हमेशा फॉरवर्ड बायस रहेगा, हमेशा आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा? 2 वोल्ट्स मिलेगा। दिस वुड हैव बीन माय आउटपुट। एंड अभी जो मेरा आउटपुट मिल रहा है क्या है? दिस इज द आउटपुट दैट आई एम गेटिंग। This is the output that I am getting. यहाँ पे जब इनपुट सिग्नल, जब आपके पास
जब आपका इनपुट 0 वोल्ट्स है, ऑलमोस्ट 0 वोल्ट्स है, तो उस केस में आपका आउटपुट कितना मिल रहा है, 2 वोल्ट्स मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। व्हेन इट इज 25 मिलीवोल्ट्स, व्हाट इज दैट यू आर गेटिंग ओवर हियर, 2 + 0.25, नथिंग बट उसको आप एम्पलीफाई करके आउटपुट साइड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इज दिस क्लियर? सो व्हाटएवर द चेंजेस दैट यू आर हैविंग इन द इनपुट साइड, जो भी चेंज आपको इनपुट में मिलेगा, वो चेंज आपको कहां पे रिफ्लेक्ट होगा, आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है? हेलो, जो चेंज आपको इनपुट में दिख रहा है, वो चेंज क्या ये बात समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. ओके, मैं एक आपके लिए इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ, इक्विवेलेंट मॉडल आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक्चुअल हमारा सर्किट दिखता कैसा है, ठीक है? ये एक्चुअली हमारा सर्किट दिखता कैसा है। दिस इज द बेसिक सर्किट ऑफ एन एम्पलीफायर। इस तरीके से होना चाहिए एम्पलीफायर। ओके, so this is nothing but my VCC, this is RC, and this is RE. I hope everyone knows the role of each and every component that I'm adding. Okay, RC का भी रोल है, RE का भी एक रोल है, and ये जो coupling capacitor है, इसका भी एक रोल है। This is nothing but my coupling capacitor, and this is nothing but my bypass capacitor. Uh, this is nothing but my bypass capacitor, and again this is also my coupling capacitor. Okay, input हम कहाँ पे दे रहे हैं? This is the input that I will be taking. This is the input. ये हमारा input voltage source, ये हमारा input voltage and output कहाँ पे मिलेगा? इसके across मुझे मिलेगा मेरा output with respect to this and with respect to ground. इस पॉइंट को with respect to ground अगर बनूंगा तो मुझे output मुझे मिलेगा। ये मेरा actual circuit होता है, ठीक है? अभी तक जो भी हमने DC एनालिसिस में किया, DC एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एस्टैब्लिशिंग एन ऑपरेटिंग पॉइंट, एस्टैब्लिशिंग एन ऑपरेटिंग पॉइंट। तो वहां पे हम सिर्फ क्या डिस्कस कर रहे थे? इस सर्किट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया था, सिर्फ और सिर्फ इस सर्किट के बारे में डिस्कस किया था। यस, एंड नाउ वी विल सी इफ आई एम गिविंग एन इनपुट सिग्नल हाउ माय सिस्टम इज गोइंग टू बिहेव। अभी हम डीसी एनालिसिस नहीं करेंगे, अभी तक जो भी हमने किया था दैट वाज माय डीसी एनालिसिस टू एस्टैब्लिश एन ऑपरेटिंग पॉइंट। अभी ऑपरेटिंग पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया तो मैं डीसी एनालिसिस की बात नहीं करूंगा, अभी मैं बात करूंगा एसी एनालिसिस। AC analysis. When I say AC analysis, how my BJT is going to behave or what is the output that I will be getting with respect to the input that I have, which is alternating in nature. Okay, इस बात में मेरा जो वॉइस सिग्नल होता है वो साइनसॉइडल नहीं होता है, साइनसॉइडल नहीं होता है, इट इज अ रैंडम सिग्नल, रैंडम फ्लक्चुएटिंग सिग्नल। आप जानती हो वॉइस सिग्नल कैसा होता है, इट इज अ रैंडम फ्लक्चुएटिंग सिग्नल, राइट? लेकिन सिंपल सा एक साइनसॉइडल लेके हम उसको एनालाइज करेंगे। द सेम थिंग कैन बी अप्लाइड टू एनी सिग्नल व्हिच इज अल्टरनेटिंग इन नेचर। क्या चीज समझ में आया आप लोग को? मैंने आपको रफ आइडिया दिया कि व्हाट इज दैट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट।
Hello. Hello, am I audible? Okay, fine. I'm taking the attendance now. There's a problem here. Connectivity दिक्कत आ रही है. So let me take your attendance.